फिल्म की शुरुआत सन 1981 को दिखाते हुए होती है, जहां सोवियत सेना अफगानिस्तान में थी। एक छोटे से गांव में मुजाहिदीन लड़ाकों की एक टुकड़ी छिपी हुई थी। सोवियत सेना को आदेश मिला कि गांव पर सजा के तौर पर हमला करना है। इसके लिए कई टैंक भेजे गए। इन टैंकों ने गांव को पूरी तरह तबाह कर दिया। सैनिकों की जगह इन टैंकों में कुछ सैडिस्ट और पागल लोग थे जो क्रूरता से भरे हुए थे। उन्होंने गांव वालों पर हमला शुरू किया। किसी को नहीं बख्शा, सबको अंधाधुंध गोली मार दी, कुओं में जहर डाल दिया, पानी पीने लायक नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि कुछ लोगों को आग फेंकने वाले हथियारों से जला डाला। अगर वहाँ बच्चे होते तो शायद ये लोग उनके सिर काटकर बिना नमक मिर्च के खा जाते। कुछ नहीं किया जा सकता था। 80 के दशक में सोवियत सैनिकों की छवि ऐसी ही बनाई गई थी। जब इन लड़ाकों को लगा कि गांव की पूरी आबादी खत्म हो गई, तभी एक आदमी सामने आया। उसने टैंकों पर हमला कर दिया। टैंकरों ने उसे पकड़ लिया, बेअसर किया और टैंक के नीचे डाल दिया। टैंकों का कमांडर। Hold on to your turbans, folks. Buckle up for a wild ride because this story is about to explode. So, picture this, you've got this ruthless dude, Diskal, barking orders to his buddy Kostya Virchenko to flatten some poor soul. Kostya, all reluctant like, does the deed, leaving behind nothing but a bloody mess. These tanks barrel on after decimating a village, but hold the phone. One tank goes rogue, gets lost. Now, enter our hero, a mujahideen named Mustafa, who spots this metal beast and thinks, jackpot. He decides to rope in his cousin Taj, even though they've got beef older than the hills. Taj is knee-deep in mourning, fresh from watching his village get pulverized, but Mustafa lays on the charm, and after some serious persuasion, convinces Taj that fighting back is the only option, even though Taj thinks Mustafa would steal gold fillings off a dead Russian. With little more than speed and grit, these Afghan fighters brace themselves. And it's at this exact moment, my friends, that another surprise awaited. छोटा तालाब दिखा। एक लड़का पानी पीने गया, लेकिन झाड़ियों में छिपे जहर के कंटेनर से पानी जहरीला हो गया था। जो शख्स पानी पीने की कोशिश कर रहा था, वह तड़पते हुए मर गया। बाकी लोग तालाब के पास नहीं गए। टैंक कमांडर दास्कल दूर से ये सब देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि सारे अफगानी जहरीला पानी पीकर मर जाएंगे, लेकिन जब उसकी योजना नाकाम हुई तो उसने दुश्मन पर गोली चलाने का आदेश दिया। गोला बैरल में अटक गया। खतरा था कि वह फट सकता है और टैंकरों को ही नुकसान पहुंचा सकता है। दास्किल ने अपने साथी एंटोन गोलिकोव को गोला निकालने का हुक्म दिया। इस कोशिश में एंटोन की मौत हो गई, लेकिन चाल काम कर गई। मुस्तफा की टीम में एक शख्स बुरी तरह घायल हो गया था। मुस्तफा ने उसे गोली मार दी। उधर गांव की कुछ महिलाएं सोवियत सैनिकों का पीछा कर रही थी। उनके पास ग्रेनेड थे। वह रात में अपने रिश्तेदारों के कातिलों से बदला लेना चाहती थी। ताज को रास्ते में एक पवित्र पुरुष मिला जो उसका इंतजार कर रहा था। उसने रास्ता दिखाया और आग जलाई। उसे एक सपना आया था कि ताज एक पत्थर से टैंक को Hold on to your hats, folks, because this is where things get wild. Picture this, Kostya, our main man, channeling his inner David, ready to take on some Goliaths. But get this, he's caught in this crazy convo with Samadov, who's dropping knowledge bombs about Pashtun honor codes. Meanwhile, Golikov and Kamams are duking it out over, wait for it, a nude photo. Seriously, Kostya's scribbling away, trying to make sense of it all while Samadov's playing to a guide. Then bam! Kostya rigs up the tank with some seriously high-tech enemy detectors, and suddenly, they're surrounded. Talk about a party. The tank goes berserk, turrets spinning, flamethrowers blazing. It's a full-on fireworks display. But here's the kicker. Diskal sends Samadov out to check the bodies. Yeah, right. He's planning to ice him. But Kostya? He's having none of it. Don't kill him, he's no traitor, he yells, which, predictably, doesn't sit well with Diskal. And the next morning, a grim discovery, just animal carcasses littering the landscape near their tank. Apparently, those Soviets just had a little snack night to spend a good night. गोली मारकर जला दिया था, ये सोचकर कि ये दुश्मन है। जब टैंकर रुके तो समदोव ने प्रार्थना करने की कोशिश की, लेकिन दास्कल ने उसे रोक दिया। उसने समदोव को नदी में जाने का आदेश दिया और फिर उसे गोली मार दी। इसके बाद गोलिकोव और कामिंस्की को हुक्म दिया कि समदोव के सिर के नीचे पत्थर बांधकर ग्रेनेड से उड़ा दें। इधर अकबर नाम का एक शख्स उन लोगों को ढूंढ रहा था जो टैंकरों का पीछा कर रहे थे। वह भी लड़ना चाहते थे, लेकिन अकबर ने उन्हें घर लौटने को कहा, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। दास्कल ने दूर सड़क देखी और कामिंस्की को गाड़ी चलाने का आदेश दिया, लेकिन 1 मिनट बाद उसने टैंक को रोक दिया। सामने एक घाटी थी जिसे पार करना नामुमकिन था।
ईंधन भी कम बचा था और टैंक का गैस टैंक पंक्चर हो गया था। टैंकरों को इसकी खबर नहीं थी। जब आवारा कुत्तों ने कोस्तिया को परेशान किया तो उसने सिर घुमाया। तभी ग्रेनेड पत्थर से गिरकर फट गया। कुत्ते डर कर भाग गए, लेकिन कोया को नुकसान नहीं हुआ। गांव की महिलाएं टैंकरों के पीछे लगी थी। उन्होंने कोस्तिया पर पत्थर फेंके, लेकिन ताज अपनी All right, buckle up, folks. Our ragtag crew's chilling in the mountains, campfires blazing, and it's chow time. Every warrior chips in for the feast, and Kostia's taste test gives the green light. But hold on, Mustafa's rocket launcher is busted, the very thing he needs to blast a tank. Taj, in a stroke of genius, calls on Kostia's Russian know how to fix it. Boom, fixed. Now for Taj's brilliant idea. Hey, you're Russian, you know tanks. You blow it up. Kostya ponders and says yes. No mercy for his ex-comrades. They ditched him for mouthing off to the mean commander, remember? Meanwhile, our tank crew spots a chopper, hallelujah. Kaminsky and Golikov are practically doing cartwheels at the thought of going home. But Daskal, that stubborn mule, sends them back into the tank. Their only escape route, a narrow valley, right through those Afghan fighters. But Daskal's calling the shots, and Golikov and Kaminsky have no choice but to grit their teeth and roll on. Prepare for a rumble. ताज की टुकड़ी टैंकों को देख रही थी। टैंक के लौटते ही लोग खुश हुए। ताज ने कोस्तिया को समझाया, अब हम इसे घाटी में मार गिरा सकते हैं। बस हमें टैंक से आगे निकलना है। रास्ते में टैंकर उस जहरीले तालाब पर रुके। हेलीकॉप्टर में जो भी था, उसने पानी पिया और मर गया। दास्कल को गुस्सा आया। उसने कहा, मुझे इस गंदे देश से नफरत है। तभी ताज की टुकड़ी दिखी। दास्कल ने गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन टैंक स्टार्ट नहीं हुआ। दुश्मन करीब आ रहा था। अफगानियों को पकड़ने के लिए ताज और कोस्तिया ने योजना बनाई। कोस्तिया को समझ आया कि टैंक के पीछे सीधे जाना खतरनाक है। उसने कहा, हमें ऊपर से जाना होगा। टैंक की बंदूकें इतना ऊंचा निशाना नहीं लगा सकती। वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। टैंक गर्म होने लगा, लेकिन दास्कल ने आखिरी दम तक चलाने को कहा। कोस्तिया और ताज ने टैंक को पीछे छोड़ दिया और गोलीबारी की पोजीशन ले ली। कोस्तिया के पास गोला नहीं था, ताज के पास था, लेकिन वह निशाना नहीं लगा सका। टैंक आगे निकल गया। दोनों इसके पीछे दौड़े। टैंकरों ने गोली चलाई। गोला टैंक की बंदूक से टकराया, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। टैंकर